Hello, namaste, and welcome to all. So, we are gathered here for the book review of Legends of Bharat. This book is newly launched हिंदी जगत में एक एक आप कह सकते हैं कि ये बहुत शानदार किताब का आगमन हुआ है और उस किताब के दो राइटर्स जो हैं वो हमारे साथ आज मौजूद हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगी डॉक्टर कपिल भार्गव एंड वाई श्री तेजस्वी जी का, जिन्होंने इस बुक को लिखा है। आप नाम से ही समझ सकते हैं, द लेजेंड्स ऑफ भारत व्हेन इंडियन नॉलेज सिस्टम इंस्पायर्ड जीनियस। दिस इज समथिंग रियली इनोवेटिव जो कि आज तक हमने नहीं सुना। सो फर्स्ट आई वांट टू आस्क टू दीज ऑथर्स, फर्स्ट डॉक्टर कपिल भार्गव, कि उनको कैसे इंस्पिरेशन मिली इस बुक को लिखने का और व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड राइटिंग दिस बुक? Actually, we started to think to write something new, and here we think about the Indian knowledge system. So we want to pursue and we want to spread the real knowledge, which is inherent in our Vedic era, in our Upanishad, Gita, and all. So we find the idea from that, and me and Tejasvi started to write them. This is now concrete, and we find this as Legends of Bharat. Tejasvi, this question is from you, as you are an engineer from background and currently you are pursuing PhD as well. So, how this topic inspired you? PhD is a future avenue, but I think this would helpful for me to gradually grasp the concepts and to understand how research usually used to work. It's been the support and guidance from Bhargav sir, who has guided through the entire process over the book writing and researching skills, and to present this over the deriving roots of our Indian knowledge system and also connecting the roots with the management policies as well. So this has been the advent for me to explore more and enrich the skills for the people who can understand and learn more. Oh, that's great. That's really great, Tejasvi. And one more thing, as I have gone through this book is the combination of three different languages. It includes some shlokas of Sanskrit, some Hindi, and English as well. So, how these things combine together? I want to ask this from Kapil sir. इसको मैं स्टार्ट करूंगा, बताऊंगा आपको कि संस्कृत के श्लोकों में जो वास्तविकता है और भारतीय ज्ञान परंपरा की जो निधि है वह कहीं ना कहीं उपनिषदों में है, भगवद गीता में है। इस पुस्तक को लिखने के पीछे यही रहा कि हमें बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी जिनमें भारत के जो कर्मयोगी हैं उनके विषय में जानकारियाँ दी गई हैं, लेकिन इस पुस्तक में हमने वास्तविक रूप में उनका जो की पॉइंट है, मतलब जीवन का जो मुख्य ध्येय है, उद्देश्य है, उस उद्देश्य को ध्यान में रखकर भारतीय ज्ञान परंपरा से कहीं ना कहीं वो मोटिवेट हुए हैं। उस मोटिवेशन को हमने दोनों ने ध्यान रखा और बहुत अच्छी तरीके से की पॉइंट्स को खोज के तेजस्वी लाई और कहा कि सर इसमें हम किस श्लोक को, किस उपनिषद को, किस गीता के श्लोक को, पंचतंत्र को, किस चीज़ को इससे जोड़ सकते हैं। तो उस परंपरा को हमने प्रारंभ किया और उसको करते ही नई नई चीज़ें हमारे सामने आने लगी और सभी के जीवन में कुछ ना कुछ एक ऐसा बिंदु होता है जो उसके जीवन को परिवर्तित कर देता है। अभी आप इस किताब को पढ़ेंगे, किरण बेदी जी के जीवन का जो भी ध्येय रहा और संस्कृत के श्लोक या संस्कृत की ज्ञान परंपरा जो है उसने कहाँ से उसको इंस्पायर किया उनको, वो चीज़ आपको उसको देखने को मिलेगी बड़ी। I'm sure this must be a tough process to go on through with all these legends, because हम जो भी देख रहे हैं, जिनके भी images आप देख सकते हैं इस बुक के कवर पेजेस पर, जितने भी लोग हैं इस बुक में, they all are the legends। सबकी स्टोरीज जो है हमने कहीं ना कहीं सुनी हुई हैं, बट ये कभी नहीं सोचा कि कैसे कौन सा श्लोक जो है उनके जीवन को कितना चरितार्थ करता होगा। So this must be a very tough journey, Tejasvi, and you have gone through lots of things. You know, it means you cannot do the things in just one night. Yes. Wheels are started running from way too back. So I just want to know your journey during writing this book. Initially, we started with the concept like we need to write something, but we were not sure what to write. But we were sure like we need to connect something which can be empowering for the youth and also useful for the management principles and also to the what our education policies used to empower and enrich over the roots as well.
So with that, sir came up with the idea, like Indian knowledge system, we have that, and you also, with your support, you introduced the concept like factology, which was very new to me. I was not aware of what is factology. So with that concept, we started our ideation, thinking a lot, doing the research, and factually we connected all those dots, like which is the leader, what leader we need to choose, whom we need to write, all those things we collaborated together. Then we started thinking कि क्या principle किसके life से क्या connected है, और उस principle से फिर कौन से श्लोक और कौन सा अपने चरित्र क्या बोलते हैं. Because knowing our Indian epics is much more important other than focusing on urban management policies. जो Western management है वो भी Indian epics और Indian management theory से ही आई है. So that is what our concept is. तो वहाँ से start किया हम लोगों ने. यहाँ पर तेजस्वी जी ने जो फैक्टोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, हम देखते हैं कि बहुतायत में इंग्लिश में, आंग्ल भाषा में फैक्टोलॉजी के स्थान पर यहाँ मिथोलॉजी शब्द का प्रयोग हो रहा है, और कहीं ना कहीं वो हमारी जो ज्ञान परंपरा है उसको कहीं ना कहीं एक कटघरे में खड़ा कर देता है मिथोलॉजी शब्द. तो यहाँ पर जो रिप्लेस किया है शब्द हमने, और खासकर उसमें आकृति जी का भी सहयोग रहा है उस शब्द को देने में, उनके द्वारा ही दिया गया है. तो ये शब्द प्रचलन में होना चाहिए. आज मिथोलॉजी की जहाँ चर्चा होती है, कहीं ना कहीं देखिए आप पौराणिक कथाएं उठाएंगे, रामचरितमानस या रामायण की कथा उठाएंगे. आपने हाल ही में एक राम सेतु फिल्म देखी होगी. वो साक्ष्य हैं वर्तमान में कि वो दिखाते हैं कि हमारी वैदिक परंपरा या भारतीय परंपरा या पौराणिक परंपरा में क्या क्या चीज़ें रही हैं. वो राम सेतु दिखाता है कि हमारा एक जीवंत उदाहरण हमारे रामायण का या राम भगवान के होने का है. तो इन बातों को कहने के लिए भी हम जिस माध्यम से कहें उसमें फैक्टोलॉजी एक अच्छा शब्द है और सभी को इसका प्रयोग करना चाहिए, ये हमारा मत है. नहीं, बिल्कुल सही कहा कपिल जी ने. और जैसा कि इन्होंने मेरा नाम भी इसमें लिया कि आई हैव गिवन दिस वर्ड because the one thing that came into my mind is that when we are talking about mythology, the term that hidden behind this myth, और myth को अगर हम संस्कृत में बोलें, कपिल जी मुझे सही करेंगे अगर मैं गलत कह रही हूँ, तो मिथ्या एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है जो चीज़ सही नहीं है या झूठी है. अब हम अपने पुराणों की बात करें तो आज के डेट में हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं जिससे ये चीज साबित हुई है, और ना कि सिर्फ इंडिया में, ऑल ओवर द नेशन, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये चीज प्रूव हुई है कि ये चीज मिथ नहीं है. तो व्हाई स्टिल वी यूज अ टर्मिनोलॉजी एज माइथोलॉजी? इट शुड बी फैक्ट्स, एवरीथिंग शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स, इट मस्ट बी फैक्टोलॉजी. सो ये आप जब बुक रीडिंग करेंगे ना तो यू मस्ट गॉन थ्रू विद दिस थिंग, एंड दिस शुड रियली इंस्पायर्ड यू that why we used factology instead of mythology. One more thing, that such kind of topics are really inspiring. Specifically, when you are writing this book, what do you think that who should be your target audience? इस बुक के माध्यम से आप किस टाइप की ऑडियंस को टारगेट करना चाहेंगे? हम यूथ को ज्यादा फोकस करेंगे. मतलब ऐसा नहीं है कि दिस बुक इज कंटेम्प्रेरी डिजाइन फॉर यूथ इटसेल्फ. जो लोग समझना चाहते हैं कि अपना भारत क्या है, व्हाट इज आवर इंडियन हेरिटेज सेज, और इंस्टेड ऑफ फोकसिंग कि ये ऑथर ने ये लिखा, वेस्टर्न मैनेजमेंट तो सही है ही, आई एम नॉट सेइंग दैट इज रॉन्ग, बट दैट इटसेल्फ डिराइव फ्रॉम व्हाट आवर एपिक्स आर. जैसे वी नो मेनी लेजेंड्स, चाणक्य नीति दैट वाज फ्रॉम द अशोका डायनेस्टी, वहां से ये सारी चीजें डिराइव हुई हैं. तो अपन वो रूट्स को भूल के अपन वी आर मोर ओवर फैंसी कॉन्सेप्ट्स, लेकिन वो फैंसी जो टर्मिनोलॉजी है वो कहीं ना कहीं अपने इंडियन हेरिटेज से ही लिंक्ड है. तो बीइंग एज अ प्राउड इंडियन यू शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट आर एपिक सेज. तो मेरा ये आइडिएशन है. बिल्कुल सही कहा तेजस्वी ने. इसमें हमने डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को लिया है, और उन्होंने खुद कहा था कि गीता का जब तक मैं अध्ययन नहीं करता हूँ मेरे जीवन में मुझे वह ऊर्जा नहीं मिल पाती, इस तरह से कुछ कहा था उन्होंने. तो निश्चित रूप से श्रीमद् भगवत गीता ने कहीं ना कहीं उनको इंस्पायर किया, कहीं ना कहीं उनको जीवन जीने का एक कौशल, एक कला सिखाई. और इसमें लगभग जितने जीनियस हैं, जितने भी हमारे लिए हुए कर्मयोगी हैं, उन सभी के जीवन में कहीं ना कहीं भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय दर्शन, भारतीय तत्व, इसने एक असर डाला है. तो निश्चित रूप से इनका मानव के जो इस स्तर पर पहुंचे हुए व्यक्तित्व हैं, उनके जीवन पर जब इनका प्रभाव पड़ा तो निश्चित ही सभी जानना चाहेंगे कि सभी के जीवन पर भारतीय ज्ञान परंपरा का क्या प्रभाव पड़ता है. भगवत गीता को ले हम
या किसी भी ग्रंथ को लें, सब में प्रामाणिक रूप से जीवन जीने के अधिक से अधिक प्रयोगों को बताया गया है। यहाँ पर पंचतंत्र के भी श्लोक आपको मिलेंगे, हितोपदेश के श्लोक मिलेंगे, तो उनका किसी व्यक्ति विशेष के जीवन पर क्या प्रभाव है, सभी पढ़ना और समझना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत इंस्पायरिंग बात कही, और बिल्कुल इस बुक का जो है यही एक जो है एक मतलब था रिलीज करने का, कि इट शुड इंस्पायर पीपल्स, where because the tagline, if you gone through this, when Indian knowledge inspired genius, it's all about the inspiration. So I'm just going to end this talk with one last thing, is that ki book writing is a journey, right? We have started from very raw thing and moving ahead. तो बुक लिखने से लेकर के बुक पब्लिकेशन, दैट टू, अगर आप यहाँ पर एक सिंबल देखेंगे, दैट इज प्रभात पब्लिकेशन, द वेल नोन एंड रिनाउंड नेम। वहां तक पहुंचने की जर्नी में आपसे जानना चाहूंगी कि एक न्यू राइटर होने के बावजूद आप वहां तक पहुंचे, या क्या क्या कठिनाइयों का सामना पड़ा आपको वहां तक पहुंचने में, और कैसे आज आपकी ये जर्नी जो है वो आज हमारे सामने रखी हुई है। दिस इज बिग स्ट्रगल स्टोरी, सो आई want to know with तेजस्वी's वर्ड। तेजस्वी, क्या रहा है स्टोरी इसकी? पहले हम लोगों ने सोचा था कि हमको कुछ लिखना है, तो लिखना क्या था, पहले टॉपिक में ही हम लोग कितना कंफ्यूज हो गए कि क्या टॉपिक अपन को लेना चाहिए। पहले दिस बुक भारत से पहले इंडिया था। जी सर ने करेक्ट करवाया कि अगर अपन इंडिया लिखेंगे तो वो इनक्रेडिबिलिटी दिखेगी नहीं, तो भारत होना चाहिए। दिस मस्ट बी अ हॉट टॉपिक। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे वी स्टार्टेड आइडेंटिफाइंग कि कौन से 20 लोगों के बारे में लिखना है। इनिशियली दैट वाज 10, है ना सर, 10 लोगों के बारे में लिखा, फिर उसके बाद भी एक्सटेंडेड कि 20 लोगों के बारे में लिखेंगे। फिर 20 में किसके बारे में लिखना है, उनके प्रिंसिपल्स क्या है, वो प्रिंसिपल्स फिर अपने शास्त्र से कैसे जुड़ी हुई है, वो सर का उसमें बहुत बड़ी भागीदारी उसमें रही है कि वो आइडेंटिफिकेशन में उनका क्रेडिट है इसमें, उनने काफी सपोर्ट किया है इस